السلام علیکم مائی ویورز، مائی فرینڈس، آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ سب کیسے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کے میسیجز آ کے کہ آپ کیسی ہیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، میرے یوٹیوب پہ، ہر جگہ آپ کے میسیجز تھے کہ آپ کیسی ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا میں اپنے ویورز کو بتا دوں، سوری میرا گلا بھی خراب ہے، کہ میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا۔ وہ ایکسیڈنٹ ایسے ہوا کہ 3 دن کی چھٹی کے بعد، جو عید کے بعد چھٹیاں آتی ہیں، اس کے بعد میں گئی ہوں اپنی ڈیوٹی پہ، اور وہاں پہ بس ایسے ہی کلیننگ کرنا شروع کر دیا، تو فرش پہ پانی تھا، اور وہاں پہ میری جو دوست تھی رباب، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو میں، وہ میرے ساتھ ہی تھی۔ تو وہ ڈرتی ہے کاکروچ سے، جبکہ میں نہیں ڈرتی۔ میں نے کہا کاکروچ ہی تو مار دو، بولتی ہے نہیں تم مارو، تمہیں ڈر نہیں لگتا تو، ورنہ اس کو بھگاؤ۔ چیخے مار کے وہ تو کرسی پہ چڑھ گئی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں مارتی ہوں۔ پہلے میں نے اس کو وائپر مارا، وہ نہیں مرا، پھر میں نے اس کو پھر سے مارا، وہ نہیں مرا، پھر میں نے اپنا جو ہے نا پاؤں، دایاں پاؤں، وہ اس کے اوپر رکھا تاکہ وہ مر جائے اور میری دوست اس سے نہ ڈرے۔ لیکن جب میں نے پاؤں اپنا بڑھایا، اور جو میرا لیفٹ پاؤں تھا وہ پانی کے اوپر تھا، اور چپل میں نے پہنی ہوئی تھی کوئی گھٹیا کوالٹی، اور جو کہ میری بھی نہیں تھی، وہ میں سلپ ہو گئی، اور جو میرا دونوں ہاتھ تھے نا میں نے زمین پہ لگائے تاکہ میں گرنے سے بچ جاؤں۔ تو جو میرا لیفٹ ہینڈ ہے وہ آ گیا میرے کمر کے پیچھے، اور اس طرح کر کے مڑ گیا۔ اس کے اوپر میرا ماشاءاللہ سے اب وزن ہے 65 کلو 65 کلو۔ تو وہ وزن میرا اوپر آ کے تو میرا ہاتھ کی یہ جو ہڈی ہے ٹوٹ گئی۔ تو اسی طرح سے میرا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے رباب کو بولا کہ آپ جو ہیں نا، ایک ہاتھ سے میں نے اپنے ہاتھ کو پکڑ لیا اس طرح کر کے، اور میں نے رباب کو بولا کہ لگتا ہے کچھ ٹوٹ گیا ہے، تو تم جلدی سے لے کے آؤ اسٹک لے کے آؤ۔ وہ آئس کریم والی ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی، تو وہ 3-4 ادھر باندھی اور 3-4 ادھر باندھی۔ تو اس کو میں نے بولا کہ میں پکڑتی ہوں تو تم لے کے آؤ بینڈیج، فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہوگا۔ تو وہ لے کے آئی، پھر ہم نے یہاں پہ پٹیاں وہ اسٹکیں رکھ کے اوپر نیچے، تو اس کو وہ بند کر دیا، پٹی بنا دی۔ تو اس کے بعد ہم نے میری جو آنر تھیں ان کو کال کر کے انہوں نے ہماری کال ریسیو نہیں کی، ایون کہ 2 بج گئے۔ پھر 2 بجے ہم نے کسی اور کو کال کی کہ شاید اس کی کال اٹھا لیں، انہوں نے پھر بھی نہیں اٹھائی۔ اس طرح کرتے کرتے پھر ہماری ایک کلائنٹ آئی، تو ان کو ہم نے بولا کہ آپ اپنے موبائل سے کریں، کیونکہ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی، اور میرا ہاتھ سوج کے یہاں آ گیا تھا، مطلب تھوڑا سا اوپر ہو گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کال کی، پھر وہ آئیں، اور ایسے کرتے کراتے جو بھی ہوتا ہے یہاں کا رولز کے مطابق، جو بھی قوانین ہوتے ہیں UAE کے، کہ اگر آپ کے امپلائی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کس طرح ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، یا جو بھی ان کے پیپر ورک ہوتا ہے وہ کیا۔ اور اس طرح بج گئے 5، 4، 4:30 کا ٹائم تھا۔ وہ مجھے بولتی خود جاؤ، گئی میں، وہ بزی تھیں، تو میں گھما کے ایک ہاسپٹل پہنچی۔ وہاں انہوں نے بولا ہے کہ ویئر از یور اسپانسر، برنگ یور اسپانسر فرسٹ، کیونکہ ان کی ہی ID سے انہوں نے ان کے لائسنس وغیرہ چیک کر کے جو بھی ہے، تو اس کے بعد میرا علاج کرنا تھا۔ تو پھر میں اپنے ہاتھ ایسے ہی پکڑ کے ٹیکسی والے کے ساتھ واپس گئی، تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ واپس گئی، اور وہاں سے پھر میں مایوس ہو کر ویسے ہی درد لے کے واپس چلی گئی۔ اور جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ بہت پریشان ہو رہا تھا میری حالت دیکھ کے، کیونکہ ریگولر ہم انہی کے ساتھ آتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ آنا جانا ہمارا ہے۔ تو
वो बेचारा इतना परेशान हो कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ कि अगर तुम्हारी ऑनर या कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा वो करेगी। मैंने कहा नहीं, मैं खुद भी अपना इलाज करवा सकती हूँ। मेरी खुद का वो मतलब पेमेंट नहीं ले रहे थे डॉक्टर्स। वो बोलते नहीं, आप अपने स्पॉन्सर को लेके आओ, शुड बी दे हैव टू पे योर मनी। तो ये इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पे करना है ये सब। तो बहुत बहुत खुशी हुई कि देखें, हम अगर परदेश में जॉब करते हैं तो उसमें हमें बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान कम होते हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं अगर आप किसी दूसरी कंट्री में काम करते हैं तो। फिर मैं उनको जाके मैंने बताया कि मेरे वजह से वो मतलब मेरे पैसों से वो नहीं करने वाले, आपको ही जाना पड़ेगा। और वो चाह रही थी कि ये खुद ही अपने पैसों से करवा ले, तो उनकी ये चाल नाकाम हो गई। फिर उनको लेके जाना पड़ा, दबर घूमती फिरी 2-3 हॉस्पिटल में, तो वो बंद थे क्योंकि ईद की छुट्टियां थी। ईद की यहाँ छुट्टियां होती हैं 5, और मैं ईद के चौथे दिन ड्यूटी पे थी क्योंकि हमारे जो है फील्ड वहाँ के रूल्स और हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वही हॉस्पिटल था जहाँ पे मैं पहले गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उन्होंने फिर से मेरा चेकअप किया, पता नहीं कान में कुछ चीज़ लगा के चेक करते हैं, और मेरा वज़न चेक किया जो कि था 65 kg। इतना ज़्यादा वज़न हो गया मेरा यूएई में आने के बाद। पहले था जब मैं यूएई में इंटर हुई थी तब था 52 kg, और अब मेरा हो चुका है 65 kg वज़न। तो यहाँ पे आपके वज़न भी बढ़ते हैं। तो अगर आप खुश रहते हैं तो अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं तो फिर क्या, उन्होंने पेमेंट वगैरह की और फिर मुझे लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे चेक किया, उन्होंने बोला कहाँ पे पेन है। मैं उनको बोल रही थी कि यहाँ पे, मुझे यहाँ पे पेन फील हो रहा था, ना कि इधर। फिर उसके बाद मुझे वो लेके गए हैं एक्सरे रूम में, मेरा एक्सरे किया, एक्सरे की रिपोर्ट आई है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर मुझे तकरीबन 1 घंटे के बाद दोबारा देखने के लिए आए हैं। और उस वक़्त मुझे उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, और उसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं किया। डॉक्टर आए हैं तो वो बोलते हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो प्लास्टर करवाने का, और एक और जिसमें वो उन्होंने देखना था वो दूसरा एक्सरे होता है, उसमें उन्होंने देखना था कि इसका क्या मतलब सॉल्यूशन निकालना था दूसरे तरीके से। तो वो मैंने नहीं करवाया। मैंने करवाया कि प्लास्टर लगा दें, क्योंकि अगर ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा और जल्दी मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगी। क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी की फ़िक्र थी, अपने दर्द की नहीं, कि मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है जल्द से जल्द ठीक होके। फिर उसके बाद मुझे प्लास्टर लगाया गया ये, और उसके बाद मेडिसिन दी गई। तो मैं दर्द से वैसे ही करला रही थी। मालूम करलाने का मतलब पंजाबी का लफ्ज़ है, करलाना मतलब दर्द ज़्यादा फील कर रही थी। तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी जो हड्डी है वो टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो चुकी है, टूटी नहीं सॉरी फ्रैक्चर हो चुकी है। फिर उसके बाद मैं वापस गई ड्यूटी पे। मैंने बोला मैंने घर नहीं जाना, मैंने ड्यूटी पे जाना है, और जब मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी उसके बाद घर जाऊँगी, जो कि टाइम है 9:30 का। तो वहाँ पे मैंने कुछ भी जो मुझे मिला, रुबाब ने मुझे वो खिलाया, फिर उसने मेडिसिन मुझे खिलाई, और मुझे वो बोलती हैं आप सो जाओ। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे ये चोट कैसे लग गई। इतना ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटा सा गिरने पे, जो हम मामूली गिरते रहते हैं, बच्चे भी गिरते रहते हैं, उस पर इतनी चोट कैसे लग गई। फिर उसके बाद मैं जाके लेट गई। आधा घंटा लेटने के बाद टाइम हो गया 9 बजे का। तो 9 बजे मैं घर आ गई। घर आके रुबाब को दूसरे दिन ड्यूटी जाना था, वो ड्यूटी गई है। तीसरे दिन इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई, उसको छुट्टी थी, मंडे की हमारी छुट्टी होती है। तो इतनी बारिश हुई, इतनी यूएई में आपको पता होगा कि कितनी बारिश हुई है। आप सब लोगों ने पूरे वर्ल्ड ने देखा होगा न्यूज़ में कि यूएई में, दुबई में, फुजेरा, यूएई की तमाम रियासतों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और जिधर हमारी ड्यूटी है वो वाला एरिया इतना पानी से भरा हुआ है ना,
शदीद भरा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट में आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे आया। तो हमारी ड्यूटी क्लोज़ हो गई, तकरीबन 7 डेज़ की। रुबाब को भी छुट्टी मिल गई, 5 या 6 दिन तो मस्त है ना। 7वीं उसकी छुट्टी वो थी जो मंडे की होती है। तो इस तरह करके ना हमारी जो है, फिर मुझे 5 दिन की जो मेडिसिन थी वो ख़त्म हुई। फिर डॉक्टर के पास फिर गए, जहाँ पे मेरा पहले हुआ था शारजाह में। वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि आप जो हैं यहाँ पे नहीं आ सकती, अपॉइंटमेंट आपकी कैंसिल करते हैं, 24 को आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप जाएं। फिर मैंने अपनी ऑनर को कॉल की कि इस तरह हुआ है। वो फिर मुझे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई हैं फुजेरा के, और वहाँ पे उन्होंने फिर से वो बोलती शील हादा को फाजा भी ये उतार दो। वो बोलते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी डॉक्टर थे, उन्होंने बोला नहीं पहले शुड बी वी हैव टू चेक, एक्सरे करके हम चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये उतारनी है या नहीं। फिर उसके बाद मेरा 1-1.5 घंटा हॉस्पिटल में इसी तरह वो एक्सरे हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि बीबी अभी इस औरत, इस लड़की की हड्डियां जो है नहीं जुड़ी, और हड्डियां ये वाली जो होता है जॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, तो ये अलग हो चुकी हैं, ये अभी नहीं जुड़ेंगी। तकरीबन 3-4 दिन के बाद दोबारा आइएगा। और मेडिसिन फिर से मैं वही खा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे मैदे में शदीद तकलीफ़ है। रात को नींद नहीं आती, और दिन को अगर कुछ भी खाती हूँ तो वो मेरे मैदे में दर्द होती है, इतनी हैवी वो मेडिसिन। लेकिन वो मेडिसिन ने मुझे तकलीफ़ नहीं होने दी बाजू में। जब वो मैं खाती हूँ 6 घंटे बिल्कुल सुन पत्थर जैसे बाजू हैं ही नहीं। लेकिन जब वो टाइम आउट हो जाता है, 7 आवर्स हो जाते हैं, तो मेरे शदीद दर्द होता है, जो कि मैं अपने घर वालों को नहीं बताती कि उनको परेशानी ना हो, मेरी अम्मी को या मेरी बहनों को, मेरे भाई बच्चों को परेशानी ना हो। मैं उनको कुछ नहीं बताती, और बताना भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे जो भी फील करते हैं, जो भी तकलीफ़ उठाते हैं, अपने घर वालों को मत बताएं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपने मेरी पूरी स्टोरी सुन ली। फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, टिकटॉक वाले मेरे तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआएं की, और जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर रही हूँ अपनी ये ज़ख्म या चोट या ये जो फ्रैक्चर हुआ है उसको। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ठीक होने के बाद मैं और वीडियो बनाऊंगी। अभी तो बेड पे हूँ, बेड रेस्ट पे हूँ। तो एक हाथ से ये मैंने इतनी मुश्किल चलाया है ना, ये जो है स्टैंड मोबाइल का, जिसकी कोई हद नहीं। अभी थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाना था मार्केट में, मैं गई हूँ। यकीन करें धूप थी, तो मैंने कहा धूप बॉडी के लिए अच्छी होती है, थोड़ी लगेगी तो सुकून मिलेगा। लेकिन मेरे यहाँ पे ऐसी धूप लगी कि 1 मिनट भी मैं नहीं चल पाई धूप में, मेरे आग लगने लगी ऐसी मिर्चें। तो मैं वापस आ गई, और आके मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।